محترم ناظرین آداب، عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ دن ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز پر نور ہو گئی۔ پھر جب وہ دن آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3618۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ خواتین کی معاشی خود کفالت حکومت کا اولین مقصد۔ حکومت کی جانب سے خواتین میں بلا سود قرضوں کی منظوری۔ میری کارکردگی سے مجلس بوکھلاہٹ کا شکار۔ مجلس قیادت کا غیر شائستہ رویہ ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتا ہے۔ امجد اللہ خان خالد۔ تلنگانہ کے ویملواڑہ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے معائنے کے دوران ویملواڑہ کے ایم ایل اے اور کلکٹر ایک بڑے حادثے سے بچے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں لگی بھیانک آگ، لوگوں میں خوف و ہراس۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مجلس قیادت مجھ سے خوف زدہ ہے، ترجمان ایم بی ٹی امجد اللہ خان خالد کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ میری کارکردگی سے بوکھلاہٹ کا شکار مجلس میرے ساتھ ہر جگہ بدتمیزی کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے نظام آباد ایم بی ٹی کے دفتر پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مجلس اتحاد مسلمین کی قیادت ان سے خوفزدہ اور بوکھلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امجد اللہ خان خالد نے ان کی قیادت کا سکون چھین لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی عوامی مسائل پر پہنچنے پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ انہوں نے محبوب نگر اور یعقوب پورہ حیدرآباد کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اب نظام آباد میں بھی ایسی ہی صورتحال پیش آئی ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ جیسے ہی ان کو ٹیمریس اسکول میں ایس ایس سی کے طالب علم شیخ موسیٰ کی مشتبہ موت کی اطلاع ملی، وہ فوری نظام آباد کے لیے روانہ ہوئے اور 4 تا 5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مرحوم کے مکان پہنچے اور شیخ موسیٰ مرحوم کے والد سے بات کر رہے تھے کہ مجلسی قائدین نے ہنگامہ برپا کر دیا اور سوال کیا کہ آخر وہ نظام آباد کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی عوام کو مسائل درپیش ہوں گے میں پہنچتا رہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل میں نے ہی شیخ ریاض کے معاملے میں آواز اٹھائی تھی اور اب شیخ موسیٰ کے معاملے میں بھی ممکنہ کارروائی کروں گا۔ تو پورا اسٹیٹ ہل جاتا، 4 منسٹر آ جاتے، بچے کے گھر پہ آ جاتے، پورا ایڈمنسٹریشن ہل جاتا، ٹی وی 9 میں بریکنگ نیوز آ جاتی، پورے ٹی وی چینلوں کی نیوز بن جاتی، ہمارا بچہ بچہ نہیں، ان کا بچہ بچہ بتائیے آپ۔ تو ایک درد سے، یعنی ایک باپ کا جو درد ہے وہ صرف میں دیکھ سکتا ہوں، میں سہ سکتا ہوں۔ میں 4-5 گھنٹے سفر کر کے آیا اور نظام آباد سے بولے تو کچھ تڑپ لے کر آیا میں، کچھ تحقیقات ہونا، یہ چیز کو روکنا۔ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے ٹیمریس، اب ہمارے کنے کوئی ہے نہیں، مظلوم غریب ماں باپ جو ہے بچوں کے فیسا نہیں دے سک رہے، ہمارا آنے والا فیوچر بلینک ہو جائیں گا، ہم اس کو بچانا بول کے ایک ہائی کورٹ کی انکوائری ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اچانک جو ہے میرے ساتھ ہمارے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو فیاض کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے اے آئی ایم آئی ایم کے کہتے، اعجاز حسین ایکس کارپوریٹر، شہباز ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری اے آئی ایم آئی ایم، شکیل احمد ٹاؤن پریزیڈنٹ اے آئی ایم آئی ایم، ارشد پاشا کوآپریشن ممبر ہمر، یہ تقریباً 6 جنے مل کر آئے۔ آ کے جو ہے اچانک میں ان کے والد سے بات کر رہا تھا تو ان کے والد کا گلا پکڑ کے اٹھا رہی، ایک صاحب کوئی شکریہ ادا کر رہے تو ان کا گلا پکڑ کے اٹھا رہے، بدتمیزی کرے، ڈھکلم ڈھکلی، گالی گلوچ کرنے کی کوشش کرے اور یہ بول رہے ہیں کہ تم نظام آباد کہیں کو آئے۔ ارے یہ کون سا سوال ہے بتائیے؟ آپ اگر اچھے رہتے، اگر بیل اچھا رہا تو یہیں بکتا، نارسنگی کو کہیں کو لے جا کے بیچتے بیل کو، بولیے آپ اگر اچھے رہتے، 18 کارپوریٹرز اچھے رہتے تو نہ میرے کو ریاض کا مسئلے میں آواز اٹھانے کی ضرورت تھی، نہ میرے کو یہ بچے کے آپ کے شیخ موسیٰ کے کیس میں آنے کی ضرورت تھی۔
آپ فیل ہو گئے, آپ کا صدر فیل ہو گیا, آپ جا کے جو ہے کانگریس سے ٹائی اپ کر رہی. آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم ٹمریز کا مسئلہ اٹھائے تو فہیم قریشی ہمارے سے برا مانیں گے, ہمارے لینڈ ڈیلنگوں کو وہ لوگ نہیں کریں گے, تو آپ کے صدر کی ہدایت پہ آ کے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے موتا کا گھر ہے وہ, میں چاہا تو ان سے زیادہ بدتمیز کر سکتا ہوں, لیکن میں صبر کرا, خاموش بیٹھا. محبوب نگر میں بھی وہ امریکہ میں بچے کو شوٹ کر دیے, موتا لینے کو گئے تو وہاں پر بھی ایسی بدتمیزی کرے لوگ. یاقوت پورے میں 2 دکانیں جل گئے. ارے میرے سے کہیں کو بھائی اتنا ڈر, کہیں کو ڈر رہی مجلس پوری, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صدر کا پیشاب نکل جا رہا, پورے کارپوریٹر پریشان, ایم ایل اے پریشان, ایک ادنا امجد اللہ خان سے کہیں کو اتنا پریشان ہے. آپ بھی آپ مطالبہ کرو, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ میڈیا میں آؤ, پبلک کے سامنے آ کے آپ بولو کہ بھائی غلط بول رہا, آ کے نظام آباد کی عوام کو بھڑکا کے جا رہا, بولو آپ تمہارا صدر بہار جا سکتا, میں نظام آباد نہیں آنا, کہیں کو بولو آپ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر مقامی پولیس کو ہم کمپلینٹ دیے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر دا پولیس ول ٹیک نیسسری ایکشن اگینسٹ دیم, اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. واقعہ ہو کے 2 گھنٹے ہو گیا, میں ابھی بھی نظام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں. اس سے پہلے چورستے پہ کوئی بی جے پی آر ایس ایس والے بھی چیلنج کرے تھے کہ امجد اللہ خان کیسا آیا, وہ بی جے پی جو آر ایس ایس والے چیلنج کرے تھے کیسا آتا, میں آج آ کے گیا بتا رہا ہوں. پھر تم کل تاریخ تعین کرو کب آنا ہے, بولو میں اس دن بھی آتا ہوں نظام آباد میں. کوئی نہ بی جے پی والے روک سکتے, نہ آر ایس ایس والے روک سکتے, نہ ان کے سسٹر آرگنائزیشن اے ایم ایم والے میرے کو روک سکتے. بتا یاقوت پورے کا رہنے والا محمد رضوان, وہ لڑکا جو ہے ایسی سسپیشس, یعنی یاقوت پورا بوائز 2 جو سرو نگر میں ہے, سرو نگر پولیس اسٹیشن لمٹس میں آتا ہے, وہ بچہ جو ہے سسپیشس ڈیتھ ہوا اس کا, ایسی رات میں 9 بجے مرا. 2 گھنٹے کے بعد میں اس کی باڈی ہاسپٹل کو لے گئے تو خود ڈاکٹرز اس میں لکھے کہ دا باڈی ہی واز براٹ ڈیڈ 2 گھنٹے مرنے کے بعد میں. تو جبھی بھی میں تحقیقات کرا, پورا ٹیمریز کا پورا سسٹم اور پولیس ڈپارٹمنٹ پورا اس بات کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں وہ بچہ جو ہے قدرتی موت مرا, نہیں قدرتی موت مرا. ہم جو ہے ایک گمنام ٹیلی فون آیا میرے کو جو بچے کے ساتھ میں تھے, وہ لوگ یہ بولے کہ بچے کو مارے, اس سے پہلے 8 دن پہلے بھی مارے تھے, کانے میں سے خون جا رہا تھا, بچہ گھر کو گیا, اس کے بعد میں جو ان کے والدہ والی ہاسپٹل لے کے گئے, پھر لا کے چھوڑے, پرنسپل کے سامنے بات بولے کہ بچے کو کون مارے, کان میں سے خون گیا, اور بچے کے خلاف میں جو ہے وہاں باتھ روموں میں لکھ رہے تھے. بچے کے جھگڑے میں بچے کو شارپ ایج سے, جب میں وہاں ٹیمریز 2 بوائز اسکول پہ سرو نگر گیا تو وہاں بینچز ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے, تو میرے کو جب شک آیا, آج جیسا میرے کو شک آیا ویسا جبھی بھی جو ہے 31 اگست کے دن میرے کو شک آیا. تو جو فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس کے اندر واضح ہوا کہ دا بوائے ہیز بین ہٹ بائی اے شارپ ایج ان دا ہیڈ اینڈ ان دا اسٹمک بول کے. تو ساتھ والے 2 بچوں کو گرفتار کرے, ان کو جیل کو جوینیل کو بھیجے, کیونکہ کم عمر قیدی ہے وہ لوگ, ان کو جوینیل کو بھیجے, لیکن اس میں سسپینڈ کرے. کب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی, پولیس والے گرفتار کرنے کے بعد میں تھو ہوئی, تو جب وہاں پر ان کو جو ہے 3 جنوں کو سسپینڈ کرے. اب یہ سسپینڈ کرنے کا کیسا رہتا وہ سلسلہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سنگاریڈی میں جو ہے, سنگاریڈی کے آگے نارائن کھیڑ, وہاں پر ایک 10th کلاس کی بچی ایک بچے کو جنم دے دی تھی. تو بچی پریگننٹ کیسا ہوئی, 10 مہینے کے یعنی 8-9 مہینے کے بعد میں انہیں کیسا بچے کو جنم دے دی. وہاں پر گرلز ہاسٹل میں ایک نرس رہی تھی, ہر مہینہ بچیوں کا جو میڈیکل چیک اپ ہوتا. تو میں جب گڑبڑ کرا تو میرے اوپر ایک ٹریس پاسنگ کا کیس بک کرے تھے. اس وقت کے جو بی آر ایس کی لیڈی چیئرمین تھے, ان کے ہسبینڈ جا کے کمپلینٹ کرے وہاں پر. مجھے سنگاریڈی کورٹ کو میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں برابر. اب جو موجودہ کانگریس کے ایم ایل اے انہوں بھی A2 ہے اس میں, لیکن جس کو سسپینڈ کرے تھے 6 مہینے کے اندر, وہ سیم اسکول پہ جو ہے انہیں پھر سے پرنسپل بن کے آ گئی. تو میں یہ جو سسپینڈ کرے تو وہ قصہ سنا. شیخ موسیٰ کے ٹیمریز اقامتی اسکول میں مشتبہ موت کے بعد مجلس کا تعاون ناقابل فراموش. ہم مجلسی قائدین سے دلی اظہار تشکر کرتے ہیں. عبدالرشید رضوی کا بیان. انہوں نے بتایا کہ صبح سے مجلسی قائدین اعلیٰ حکام سے ربط کرتے ہوئے انصاف کے لیے جدوجہد کرتے رہے. شہر نظام آباد کی سرکردہ و باوقار شخصیت و سابق صدر ضلع میلاد کمیٹی عبدالرشید رضوی نے اپنا صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے ٹیمریز اسکول چندور میں مشتبہ حالت میں فوت ہونے والے شیخ موسیٰ کے افراد خاندان سے دلی اظہار تعزیت کی اور بتایا کہ صبح جیسے ہی اس سانحے کی اطلاع ملی, مرکز اہل سنت والجماعت کے صدر حافظ محمد رفیق اور حافظ غلام محی الدین معتمد جامع غوث الورا اور مولانا شاہد رضا امام و خطیب مسجد غوثیہ فوری وہاں پر پہنچے. اس موقع پر مجلس کے قائدین بھی موجود تھے
اور انہوں نے بر وقت نمائندگی کی اور متوفی نوجوان کے افراد خاندان کی امداد، ملازمت اور معاوضے کا مطالبہ کیا۔ ان مجلسی قائدین کی اطلاع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی ٹیمریز چیئرمین فہیم اللہ قریشی سے نمائندگی کی۔ عبدالرشید رضوی نے بتایا کہ اس موقع پر ٹیمریز نظام آباد کے ریجنل لیول کوآرڈینیٹر محمد عبدالبصیر بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی ممکنہ کارروائی انجام دی۔ عبدالرشید رضوی نے تمامی معاونین بالخصوص مجلس قائدین سے دلی اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے سیاسی مولوی قائدین پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ان مولوی قائدین کا کوئی موقف صحیح نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد شہر سے قریب 10-15 کلومیٹر دور چندور گاؤں میں تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشل اسکول میں اتوار کی شب پھانسی لگا کر ایک نوجوان کی خودکشی کا واقعہ منظر عام پر آیا۔ یہ نوجوان جس کا نام محمد موسیٰ تھا، اس کے والد عبدالحمید صاحب مدینہ مسجد دھرمپوری ہلز نظام آباد کے مؤذن بھی ہیں اور مدرسے کے خادم بھی ہیں۔ جیسے ہی یہ سانحہ کی اطلاع نظام آباد کے حفاظ علماء، ائمہ اور عوام کو ملی تو شہر کے مرکز اہل سنت کے صدر حافظ محمد رفیق صاحب اور حافظ غلام محی الدین صاحب، معتمد جامعہ غوث الورا اور مولانا شاہد رضا صاحب خطیب و امام مسجد غوثیہ نے مل کر مقام حادثہ پر پہنچے۔ ان کے ساتھ مجلسی قائدین کی ایک ٹیم بھی موجود تھی، جن کی بروقت نمائندگی نے مرحوم کے افراد خاندان کو وقتی طور پر ایک ہمت جٹائی بندائی کہ مجلسی ٹیم نے اسد الدین اویسی صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور رابطہ قائم کیا اور کہا کہ مرحوم کے بھائی کو ٹیمریز میں ملازمت کا ایک موقع دیا جائے اور مرحوم کے والد کو مالی مدد کی جائے اور مرحوم کے والد کے رہنے کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے۔ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے فہیم قریشی صاحب سے گفتگو کی اور ان کے گفتگو کے بعد یہ تیقن دیا کہ حتی الامکان متاثرہ خاندان کی مدد کی جائے گی۔ فہیم قریشی صاحب سے RLC بصیر صاحب کی بھی گفتگو ہوئی اور حافظ غلام محی الدین صاحب کی بھی گفتگو ہوئی، تو ان کو بھی یہی تیقن دیا گیا کہ انشاءاللہ مرحوم کے جتنے افراد خاندان ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے گی۔ ان تمام معاملات میں مجلسی قائدین کا ایک اہم رول رہا، جس کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسد صاحب کا، فہیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرحوم کے افراد خاندان کو زیادہ سے زیادہ مالی مدد کی جائے۔ نوٹ خاص طور سے ایک بات بتا دوں کہ نظام آباد کے سیاسی مولوی قائدین جن کا کیس سے ان معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں، ریل بنا کر اپنے آپ کو نظام آباد کا ایک قائد یا لیڈر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں یہ وہی سیاسی قائدین ہیں جنہوں نے ریاض کے حادثے سے قبل ریاض کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس کو کہا، بعد میں پھر ریاض کے انکاؤنٹر کے بعد ان کے افراد خاندان کے ساتھ گھومتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے۔ شہر نظام آباد کی عوام کو ایسے سیاسی مولویوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اور میلاد کمیٹی کے تمام ذمہ داران اس دکھ کی گھڑی میں مرحوم کے افراد خاندان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اس کے گناہ کبائر و صغائر کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامنتخب صدر سٹی کانگریس بوبلی رام کرشنا نے جاوید اکرم سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی اور تعاون کی درخواست کرتے ہوئے شال پوشی و کل پوشی کی۔ جاوید اکرم نے اپنی مکمل تعاون کا ٹھوس تیقن دیا۔ نومنتخب صدر سٹی کانگریس بوبلی رام کرشنا نے نظام آباد کے سینئر کانگریس قائد و سابق صدر ضلع اوقاف جاوید اکرم کی قیامگاہ واقع علامہ گٹا پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے ان سے سرپرستی رکھنے کی درخواست کی۔ کہا کہ مجھے سینئر کانگریس قائدین کا مکمل تعاون کی ضرورت ہے اور میری رہنمائی اور مشوروں کے ذریعے کارکردگی کو بے داغ شاندار بنانے میں سینئر قائدین اگر تعاون کرے
तो हम शहर में कांग्रेस को जबरदस्त इस्तेकाम फराहम कर सकते हैं। इस मौके पर जावेद अकरम ने भी बोबली रामकृष्णा की शालपोशी व कुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। कहा कि वो हमेशा कांग्रेस के सिपाही की हैसियत से काम करते रहे हैं और कांग्रेस के लिए वो हर जगह ताउन के लिए मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जावेद अकरम ने बोबली रामकृष्णा को कई अहम मशवरे दिए और अपने पूरे ताउन का तयक़ुन दिया। कहा कि हमको बल्दी इंतखाबात की तैयारी करना है, लिहाजा कांग्रेस के कायदीन को एक साथ जोड़े रखने की ज़रूरत है और अवामी मसाइल पर गहरी नज़र रखनी और उनकी एकसवी के ठोस इक़दाम भी लाजमी हैं। जावेद अकरम ने रामकृष्णा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती इलेक्शन कमीशन ने आज तेलंगाना ग्राम पंचायत इंतखाबात का किया शेड्यूल जारी। इलेक्शन 3 मरहलों में होंगे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे। पहला मरहला 11 दिसंबर, दूसरा मरहला 14 दिसंबर और तीसरा मरहला 17 दिसंबर। कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों के नामजदगियां दाखिले की तारीखें ये हैं। पहले मरहले के लिए नामजदगियां 27 नवंबर से, दूसरे मरहले के लिए 30 नवंबर से और तीसरे मरहले के लिए 30 दिसंबर से आगाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों और मुताल्लिक़ा हुकाम को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत दी है। निजामाबाद में तंजीम इस्लाह मुआशरा की जानिब से हुफ़ाज़ इकराम, उलमा और बेरोजगार नौजवानों के लिए फनी व तकनीकी तरबियत का अहम प्रोग्राम शुरू किया गया है। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। तंजीम इस्लाह मुआशरा निजामाबाद ने ऐलान किया है कि शहर और अतराफ के हुफ़ाज़ इकराम, उलमा और बेरोजगार नौजवानों को फनी रोजगार की तरबियत फराहम की जाएगी। साथ ही नमाज, रोज़ा, अखलाक और किरदार साजी के अमली असबाक भी शामिल किए जाएंगे ताकि मुआशरे में बढ़ती बुराइयों का सदेबाब किया जा सके। प्रोग्राम के आगाज़ पर हाफिज मोहम्मद इत्लाई खान, नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे के इस्लाह के लिए दीनी व अखलाकी तरबियत के साथ रोज़गार पर मबनी ट्रेनिंग निहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने मोबाइल टेक्नीशियन ट्रेनिंग के आगाज़ पर इदारे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर तबके के नौजवान इसमें दाखिला लें। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी, प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी व नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने कहा कि दीनी उलूम से फारिग अफराद को असरी उलूम में तरबियत दी जाए और असली तालीम याफ्ता नौजवानों को दीनी शऊर से आरास्ता किया जाए। यही उम्मत की मजबूती और बेरोजगारी के खात्मे का जरिया है। इफ्तिताही खिताब में खादिम मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा कि शहर, अजला और मोहल्लों में इस तरह के रोजगार भरपूर तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि मिल्लत के नौजवान टेक्निकल और मेडिकल शोबों में महारत हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि मोबाइल टेक्नीशियन कोर्स के दाखिले जारी है। हुफ़ाज़, उलमा और नौजवान मुफ्त दाखिला ले सकते हैं। दीनी तरबियती निसाब के लिए व्हाट्सएप नंबर 7416420658 पर रब्ता किया जा सकता है। इस मौके पर कांग्रेस यूथ लीडर मोइन यूनुस ने तंजीम की इस पहल को खुश आइन करार देते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मास्टर अब्दुल मतीन ने मोबाइल टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अपनी खिदमत पेश की और इंजीनियर खालिद, इंजीनियर अब्दुल अहद और अब्दुल्ला ने प्रोग्राम के इंतजाम अंजाम दिए। आखिर में इज्तिमाई दुआ के साथ निशिस्त इख्तिताम पसीर हुई। ये है कि मुख्तलिफ शोबेजात में फ़नी महारत के लिए और फ़नी जो कुछ भी हुनर है और जितने फ़नून हैं उसकी ट्रेनिंग और उसकी तरबियत के लिए ये 40 रोज़ा आगाज़ किए हैं। इसमें एक चीज़ उन्होंने लिखा कि फ़ारिग़ीन उलमा हुफ़्फ़ाज़ के लिए ये उतना सख्त ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनके पास और बहुत से दीन के शोबे, दीन के दीगर काम हैं। जो लोग फ़ारिग़ है इसके अंदर, जैसे हमारे मोइन यूनुस साहब यूथ कांग्रेस के जो मस्जिद में अजान देते मौज़िन फ़ारिग़ रहते, अजान के बाद उनकी भी तनख्वाह कम रहती। ये ठीक है कि वो फ़ारिग़ वक्त में जैसे मोबाइल टेक्नीशियन सीख ले या टेलरिंग सीख ले ताकि उनके लिए ज़रिए माश में थोड़ा सा वो मुआविन साबित हो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो निज़ामाबाद शहर के हालात है और उसमें अगर आप गौर करेंगे तो कॉलेज के बच्चों की जो उम्र होती है उसके बाद के जितने नौजवान हैं वो उम्र के, जैसे 18 साल से 28 साल के बेरोज़गार नौजवानों को पकड़ पकड़ के लाकर एक टेक्नीशियन और कोर्सों में उनको दाखिले दिलवाना चाहिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल के दौर में सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा चल रहा है कारोबार मोबाइल का है, क्योंकि हर घर में एटलीस्ट एक 5
5-8 फ्लोर तो ऐसे भी चलते हैं। लिहाजा क्या है, जब चलता है तो उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, तब जाके ज़रूरत पड़ती है कि टेक्नीशियन ज़्यादा हो। लिहाजा हफाज इकराम हो और मादिन जो भी हो वो कम से कम पीरियड में मिनिमम 50% इल्म हासिल करके तभी वो लोग सर्विस दे सकते हैं। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा कि दिलचस्पी से सीखे, कम वक्त में कुछ कमाने के काबिल बन जाए। उसमें एजुकेशनल और वेलफेयर वुमेन सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट एकेडमी है ये, जिसके ज़रिए से तंजीम के ज़रिए से चलाई जाती है। तो इसमें तंजीम के जो मकासद है, मकासद में एक बात ये भी है कि हुफ़ाज़ कराम उलमा कराम को रोज़गार टेक्निकल और मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज में कराया जाए और इसके साथ उनको टीचर्स ट्रेनिंग भी दी जाए। मैं समझता हूँ निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये काम कोई भी शुरू नहीं करे। अल्लाह हज़रत की उम्र दराज करे, बहुत अच्छी चीज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज के हमारे माशरे में, हमारे एरिया में पहले ज़माने में जो हम सुना करते थे हमारे दादा लोग से, वालिद साहब लोग से, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौज़न और इमाम को दिया करते थे हर वो चीज़ को। जैसा कि महल्ले में किरान छापे तो किराना दुकान वाले मौज़न साहब को, इमाम साहब को फ्री में दे देते, इसीलिए कि पूरा तवज्जो इमाम साहब का नमाज पढ़ाने में, दीनी तालीम में गुजरना हो। आज ऐसा हो गया, बड़े अजीब व गरीब नज़र से इमाम और मौज़न को देते। आज के दौर में इल्म दीन के साथ साथ असरी व फ़नी उलूम की अहमियत भी निहायत ज़रूरी है। हमारे उलमा हुफ़ाज़ कराम दीन के मुहाफ़िज़ और उम्मत के रहनुमा हैं, लेकिन बदलते हुए हालात में उनके लिए माशी खुद किफ़ायत भी एक बड़ी ज़रूरत बन गई है। मुफ्त मोबाइल टेक्नीशियन कोर्सेस जैसे अमली तरबियती प्रोग्राम ना सिर्फ रोज़गार के दरवाजे खोलते हैं बल्कि खुद इन्हिसारी का जज्बा भी पैदा करते हैं। खवातीन की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत का बड़ा कदम। इस ज़िम्मन में आज बोधन में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें खुद इमदादी खवातीन तंजीमों को बिला सूद कर्जों की मंजूरी दी गई। निजामुल जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत एक अजीम मकसद के साथ काम कर रही है। 2034 तक 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का अहद किया गया है। इस सिलसिले में बोधन टाउन के रोटरी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में मंडल के खवातीन खुद एतमादी ग्रुप्स को बिला सूद खर्चों के चेक तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के तहत बोधन असम्बली हल्के के 3703 खवातीन तंजीमों के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए की खतीर रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई। कलेक्टर ने कहा कि नलगोंडा के बाद रियासत में सबसे ज़्यादा 23 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम निज़ामाबाद ज़िले के लिए मंजूर की गई है, जो खवातीन की माशी तरक्की में एक अहम संगमेल है। खवातीन ग्रुप्स की नुमाइंदा खवातीन ने हुकूमत की जानिब से मिलने वाले इस ताउन पर भरपूर तशक्कुर का इजहार किया। बताया कि बैंक लीकेज और बिला सूद कर्जों ने उनके कारोबार में ज़बरदस्त इजाफा किया, जिससे उनमें खुद एतमादी पैदा हुई है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत खवातीन के लिए सोलर पावर प्लांट्स, पेट्रोल बंक, RTC किराया बसें, धान खरीदी मरकज़, स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई यूनिट्स और इंदिरा शक्ति कैंटीन जैसे कई मौक़े फराहम कर रही है। सिर्फ माशी मजबूती ही नहीं बल्कि समाजी बाइख्तियारी भी हमारी तरजीह है। हर मंडल सतह की मीटिंग में हुकूमती स्कीमों पर तफसील से गुफ्तगू की जाए। खुद इमदादी ग्रुप्स में नई खवातीन को शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुकूमती मदद से फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर में 18 साल से ज़ायद उम्र की हर खातून को इंदिरा साड़ियाँ तकसीम की जा रही है। इसके अलावा इंदिरा मकानात भी खवातीन के नाम पर अलर्ट किए जा रहे हैं और घर की तामीर के लिए ख़र्च भी दिए जा रहे हैं। निज़ामाबाद ज़िले में अब तक 67 करोड़ रुपए के खर्चे तकसीम किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, तहसीलदार विठल, IKPD PM राजप्पा और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। ఒకటికి వచ్చి ₹1 కోటి ఇవ్వరు కదా, రకరకాల స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి మీ కోటీశ్వరులు కావాలి. ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం.
సో దానికి అనుగుణంగా మీరందరూ కూడా జిల్లా సమాఖ్య నుండి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అంటే చిన్న సంఘం వరకు కూడా అందరూ దయచేసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో దానిలో ఈ ఉద్దేశాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేందుకు ఇప్పుడు నిన్న ఈ రోజు కలిపి 2 స్కీమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ముఖ్యంగా అందరికీ ఉపయోగపడేవి స్టార్ట్ చేశారు. మొదటిది చీరల పంపిణీ. సో చీరల పంపిణీ మనకి లాస్ట్ 2 రోజుల నుండి స్టార్ట్ అయింది. దాదాపు 3 లక్షల మంది మహిళలకి 6.3 మీటర్ల చీరలు ఇస్తున్నాం. మనం 3 లక్షల మందికి ఇస్తున్నాం. ఒక 47,000 మందికి 9 మీటర్ల చీరలు ఇస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా 2 రోజుల నుండి పంచడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ మహిళా క్యాంటీన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ మీ అందరికీ తెలుసు. కలెక్టరేట్ లో కూడా ఒక క్యాంటీన్ కి మొత్తం బాధ్యత ఐడిఓసి క్యాంటీన్ కి బాధ్యత జిల్లా మహిళా సమాఖ్యకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అలాట్మెంట్ పోయిన సంవత్సరం ఆగస్ట్ కి చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు వాళ్ళు దీని సందర్భంగా జిల్లా సమాఖ్య ఒక ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ క్యాంటీన్ మొత్తం జిల్లా కలెక్టరేట్ కి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. ఫండ్ కూడా వచ్చింది అండ్ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ చేస్తున్నారు. ఇది వాళ్ళకి చాలా వాళ్ళు కష్టంకి వాళ్ళు ఎండెవర్స్ కి చాలా ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ హైదరాబాద్ भोपाल मंडल मुस्तकिल में वाक़ नालकल गांव में तकरीबन 30 तामीरशुदा डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए गए। निजामा जिले के मोपाल मंडल में वाक़ नालकल गांव में आज तामीरशुदा 30 डबल बेडरूम मकानात बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तहिक खानदानों के हवाले किए गए। इस मौके पर निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मकानात की चाबियां मुस्तहिक खानदानों के हवाले की। इस मौके पर डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद गरीब व मुतवस्सित तबके को बाइज्जत रिहाइश फराहम करना है और डबल बेडरूम स्कीम इसी सिमत में एक तारीखी कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए मकानात से मुस्तहिक खानदानों की जिंदगियों में खुशहाली और उमंग पैदा होगी। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम, ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। దగ్గర 150 మంది దాంట్లో ఎక్కువ మన సోదరులు ఓటర్ కులస్తులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. దగ్గర 150 మంది ప్లాట్లు లేవు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్లాట్లు ఇవ్వాలి మనం. అయితే ముందుగా ఇప్పుడు ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నటువంటి ఇవైతే 30 ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు ఈ 30 ఇండ్లు ప్లాట్లు ఇవ్వకుండా ముందేమంటే దీనికంటే 20 ఇండ్లు వాళ్ళకి 30 మందికి మొదలు ఇచ్చి మరి ఇక్కడైతే ఏదైతే కంప్లీట్ కాలే ఇంకా అక్కడక్కడ ఒకదానికి 2 లక్షల పని ఉన్నది, ఒకదానికి ₹1,00,000 పని ఉన్నది, ఒకటేమో పిల్లల లెవెల్లో ఇంకా 4 లక్షల పని ఉంది. మరి ఏది ఉంటుందో బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ 5 లక్షల వరకు దాన్ని మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీది, ప్రభుత్వాన్ని తీసుకుంది। बांसवाड़ा हल्के के चंदूर मंडल में आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का और इफ्तिताही तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें रियासती रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए कई अहम सहूलियात अवाम के हवाले की। रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा रुकनी असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आकरों के चेयरमैन कासुला बालराज ने आज चंदूर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। सबसे पहले उन्होंने चंदूर में रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त मछली के बच्चे माहीगीर ख़ानदानों में तकसीम की, ताकि मुकामी माहीगीरी को फ़रोग़ मिले और मुआशी बेहतरी लाई जा सके। मादाजा मेडीपल्ली गांव में 11 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा नई सोसाइटी गोदाम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मापुर गांव में 30 लाख रुपए से तामीर करदा सोसाइटी सब सेंटर इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद मुनक्किदा जलसे-आम में चंदूर मंडल के खवातीन में इंदिरम्मा साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों को हर घर तक पहुंचाने के लिए पाबंद अहद है। इस प्रोग्राम में सरकारी ओहदेदार, कांग्रेसी कायदीन और बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद थी। आरमूर में आज का खुसूसी माली इमदाद प्रोग्राम, जिससे हजारों खवातीन मुस्तफीद होने जा रही है। आरमूर टाउन में वाक़े MPDO ऑफिस में आज एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुलाजिमा खवातीन के खुद मददगार तंजीमों से वाबस्ता खवातीन को बिलासूद कर्जे तकसीम किए गए। इस मौके पर आरमूर के MLA राकेश रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे बिलासूदी कर्ज़ों को खवातीन पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कारआमद मसरूफियात में इस्तेमाल करें, ताकि मुआशी खुद कफालत को फ़रोग़ मिल सके।
इसी दौरान जिला DPM संध्या रानी ने बताया कि खवातीन की तरक्की और सहूलत के लिए हुकूमत कर्जों पर मुकम्मल सूद मुआफ कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी संगम ने 20 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया है तो उस पर 5 लाख रुपए तक की रियायत दी जा रही है। मजीद बताया कि पूरे जिले में 19,026 खवातीन संगमों को 23 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है, जबकि आरमूर हल्के में 3,180 संगमों को 3 करोड़ 25 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे आज ही तकसीम किए गए। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि जैसे ही संगम के खवातीन कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा कर देंगी, रियायती रकम बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మీరే మమేకమయ్యేవారు, మీ సంఘాల ద్వారా మీరే మమేకమయ్యేవారు. బోడొచ్చిన మారేది లేదు, మన బతుకులు మనం మార్చుకోవాలి. ఆడొచ్చిండు ఈడొచ్చిండు ఇంకోడు వస్తాడు. మన బిడ్డల బతుకులు ఎట్లుండాలి, మన బిడ్డలు ఎట్లా చదువుకోవాలి, స్కూళ్ళలో పందులు కంపౌండర్లు నిన్నపోతే ఎవరు ఆడబోదు తుడుకోవాలని అంత చిన్న చూపిస్తాడు. ఏమీ తుడుకోలేదు అని ఉట్టలేదా, ఇక్కడ వెలగలేదా, భారతీయ కదా, మొత్తం కూలిపోయారు. బాత్రూమ్ లేవు, నీళ్ళ ట్యాంక్ కూలిపోతుంది, పక్కన గడ్డి పెరిగింది, పాము ₹1,00,000 తీసుకుని అది బాత్రూమ్. तानूर मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान जलकर खाकिस्तान हो गया। तानूर मंडल के सिद्धेश्वर के मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तान हो गया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि घरेलू सामान, कपड़े और जरूरी अशिया मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। वाकई की इत्तला मिलते ही मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर मोहन राव पटेल ने मुतासरीन की दिलजवी करते हुए फौरी माली इमदाद फराहम की। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ा होना ट्रस्ट का बुनियादी फर्ज है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ट्रस्ट हमेशा समाजी खिदमत के लिए तैयार रहेगा और मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। వ్యవసాయ రైతు ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధం కావడం, దాంట్లో ఉన్న వ్యవసాయ సామాగ్రి దాదాపు 90,000 వరకు నష్టం, మరి సంవత్సరానికి సరిపడే రేషన్ కూడా కాలిపోవడం జరిగింది. మరి ఇట్టి సంఘటన గ్రామ యువకుడైన మోహన్ రావు ప్రజా ట్రస్ట్ అనేది అనుకోని 5 సంఘటనలు జరిగినప్పుడు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ధైర్యాన్ని కల్పించే కార్యక్రమంలో ఈ ట్రస్ట్ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। बोधन में जिला सतह के साइंस फेयर और इंस्पायर नुमाइश का शानदार इनेकाद अमल में आया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बोधन के विजय मैरी हाई स्कूल में साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया। इस नुमाइश का इफ्तिताह रियासती हुकूमत के मुशीर और बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया। इस मौके पर उनके हमरा जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने भी शिरकत की और उन्होंने स्टॉल्स का मुआयना करते हुए तलबा के तैयार करदा मॉडल्स जैसे पायदार तरक्की, मुनाफा बख्श ज़राई तरीक़े, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी पर काबू, सोलार एनर्जी और सेहत बख्श खुराक को बेहस रहा। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तलबा को रियासती और कौमी सतह की नुमाइशों में भी भरपूर शिरकत करनी चाहिए ताकि ज़िले का वक़ार मज़ीद बुलंद हो। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि साइंस फेयर का दायरा वसी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के मसाबक़ती दुनिया में सिर्फ निसाब पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि समाजी आगाही, तहक़ीक़ और जिद्दत तराज़ी ही कामयाबी का रास्ता है। इसी मकसद के तहत हुकूमत हर मंडल में इंटीग्रेटेड स्कूल्स कायम कर रही है। बादज़ा जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि रिसर्च माइंड और तख्लीकी सोच पैदा करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इस साल इंस्पायर के लिए मुंतखब होने वाले 119 तलबा के बैंक खातों में हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये बतौर तरगीब जमा करा दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट समेत मियारी सहूलियात बेहतर की जा रही है ताकि तलबा रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सके। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए।
जबकि स्पोर्ट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को भी तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, बौद्धन सब कलेक्टर विकास महातू, DCCB चेयरमैन रम्या रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी, DO अशोक, असातिज़ा और कसीर तादाद में तलबा मौजूद थे। ఇవన్నీ కానీ నేను కొన్ని ఆకుకూరలన్నీ మేమే పండించుకుంటాం, ఇంట్లో చేసుకుంటాం. ఎందుకు? మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి. ఇవన్నీ ఒక ప్రాక్టీస్ చేపియండి మీరు కూడా. దాంట్లో ఏం పెద్ద టెక్నాలజీ ఏం లేదు, మేము చేసేది కూడా ఏమి ఉండదు పెద్ద. కాబట్టి ఒకటి ఇప్పుడు పొల్యూషన్ దేంతో వస్తున్నది, ఎందుకు వస్తుంది, అవేర్నెస్. ఆ అవేర్నెస్ లేకుండా నువ్వు ఏం చదివితే ఏం సంపాదించిన ఏం లాభం, అది ముఖ్యం. కాబట్టి ఇది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లాసెస్ పెట్టి దానికి ఒక 10% సెలెక్ట్ చేయమంటున్నాను, అంతేనా దీవు గారు? ఆ 10% అంటే మరి మన డిస్టిక్లో ఏమైనా నచ్చిన దాంట్లో 10%లో నా విద్యార్థి ఎడ్యుకేషన్తో సహా, కేవలం ఎడ్యుకేషనే కాకుండా మినిమం ఎడ్యుకేషన్తో టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ విధంగా కొందరికి ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, ఆ ఎడ్యుకేషన్తో వేరే చేస్తేనే బాగుంటుంది. కాబట్టి మనం ఇన్ని స్కూల్స్ కట్టినా, కాలేజీలు కట్టినా, టీచింగ్లు ఇచ్చినా ఉపయోగపడే విధంగా విధానాలు ఉండాలి. 102 మంది అయితే ప్రైవేట్ స్కూల్ నుండి 17 మంది వచ్చారు, 17 మెంబర్స్. సో తర్వాత సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ లోపల మొత్తము 520 మంది వస్తే 330 మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుండి, ప్రైవేట్ స్కూల్ నుండి 190 మంది. సో ఈ 190 కూడా ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది చూస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఈసారి డిఓ గారు కొంత ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలంటే మాత్రం కొంతమంది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైవేట్ స్కూల్ యజమాన్యాల సైడ్ నుండి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ నుండి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. సో మెల్లమెల్లగా ప్లే ఏరియాస్ తగ్గుతున్నాయి, ఫిజికల్ స్పోర్ట్స్ అవన్నీ తగ్గుతున్నాయి. ఇలాంటివి కూడా తగ్గించి కేవలం క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెడితే అది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడదు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. वेमुलवाड़ा के रुकनी असम्बली और सरकारी विप आदि श्रीनिवास डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान एक बड़े हादसे से बाल बच गए। वेमुलवाड़ा के रुकनी असम्बली और सरकारी विप आदि श्रीनिवास और सिलसिला इंचार्ज कलेक्टर गरिमा अग्रवाल जेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान एक मुमकिना बड़े हादसे से महफूज रहे। मौसूला इतलात के मुताबिक वेमुलवाड़ा म्यूनसिपल हुदूद में जारी तामीराती कामों का जायजा लेते वक्त श्रीनिवास और कलेक्टर गरिमा अग्रवाल के साथ मुताल्लिक़ा महकमों के आला अफसरान और मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान जब वफद ज़ेरे तामीर बेसमेंट के फर्श पर खड़ा था तो अचानक फर्श का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाइस चंद लम्हों के लिए खौफ व हरास पैदा हो गया। मौके पर मौजूद अमले और कायदीन ने फौरी होशियारी का मुजाहरा करते हुए श्रीनिवास और कलेक्टर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद तामीराती म्यार और हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुताल्लिक़ा महकमों को सख्त हिदायत दी गई ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके और खुसूसी एहतियात बरती जाए। हैदराबाद के शालीबंडा में मुहिब आतिशबाजी का हादसा धमाके ने लोगों में खौफ व हरास पैदा किया था और अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। डीसीपी साउथ जोन ने वजाहत की और कहा कि यह धमाका कार की वजह से हुआ है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के शालीबंडा के इलाके में एक मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। साथ ही एक जोरदार धमाके की आवाज ने माहौल में सनसनी पैदा कर दी। साथ ही अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। धमाका इतना शदीद था कि अतराफ की दुकानों के शटर उड़कर सामने की दुकानों से टकराए और इस हादसे की वजह से कई लोगों के जख्मी होने की भी इतला मिली है। इस हादसे की इतला मिलते ही चार मीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली अपने रुफ़ा के हमरा फौरी मुकाम हादसा पहुंचे
और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इस हादसे की इत्तला दी और इनकी हिदायत पर फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और फिर कई फायर इंजनों ने आग बुझाने की मुहिम शुरू की, लेकिन इससे कबल के गौतमी इंटरप्राइजेस नामी शॉप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इसके अलावा कई कारें, ऑटोस और दीगर गाड़ियां भी आग की जद में आकर जल गईं और अतराफ की दुकानों का भी भारी नुकसान हुआ। इस मौके पर इस इलाके के कारपोरेटर मुजफ्फर भी मौजूद थे और उन्होंने मुतासिरा अफराद की बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि इस हादसे में गौतमी इंटरप्राइजेस के मालिक के अलावा दीगर कुछ लोग जख्मी हुए हैं और असरा अस्पताल में जेरे इलाज हैं। आज रात 10:20 को गोमती इंटरप्राइजेस शाली बंडे में आग लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही मैंने नकीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि फ़ौरन फायर ब्रिगेड को बुलाइए। मैंने फायर ब्रिगेड को वहाँ से बुलाया। इसके बाद हमारे जो एरिया कॉरपोरेटर है अली जनाब मुजफ्फर साहब यहाँ पर आए। उन्होंने आकर जो आग बुझाने में काफ़ी काम इन्होंने किया और जो यहाँ के जो शटर्स तोड़कर फिर लोगों को इन्होंने बाहर निकाला जो दुकान में अंदर थे, जिसकी वजह से कोई ऐसी दुकान के अंदर कोई कैजुअल्टी कोई ऐसा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जो ओनर हैं उनको और एक काम करने वाले को कुछ आग से ज़ख्मी हुए हैं वो लोग, जिनको असरा दवाखाने में शिफ्ट किया गया। और जो रास्ते में जा रहे थे लोग, ये इसकी आग की वजह से जो शटर्स टूट के जो शीशे फूट के जो गए, रास्ते में जाने वालों भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं। इन लोगों किसी को बेला हॉस्पिटल, किसी को उस्मानिया, किसी को अपोलो हॉस्पिटल में रखा गया है। पूरी तरीके से नहीं मालूम हुआ कि आग आखिर किस तरीके से लगी, क्यों लगी है, अभी वो तो उसकी जानकारी करेंगे। और कितने लोग पूरी तरह जख्मी है भी पता नहीं चला। और देखेंगे फायर ब्रिगेड यहाँ पर आकर आग पर काबू पा लिया है और थोड़ी देर के बाद भी पता चलेगा कि इनका नुकसान भी कितना हुआ है और आग क्यों लगी है, किस वजह से आग लगी है। इस सिलसिले में साउथ जोन डीसीपी ने अवाम में एक धमाके को लेकर फैलने वाली अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि वो किसी किस्म की अफवाह से गुमराह न हो। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये खौफनाक आतिशबाजी का हादसा पेश आया है और धमाके की वजाहत उन्होंने ये की कि जिस वक्त आग भड़क उठी थी उस वक्त एक सीएनजी गैस से चलने वाली कार इस गौतमी इंटरप्राइजेस के सामने खड़ी हुई थी और ये कार आग की जद में आ गई और इसका सिलेंडर धमाके से फट पड़ा, जिसकी शिद्दत से अतराफ की दुकानों के शटर और बिल्डिंगों के गिलासेस टूट गए और कांच और लोहे के टुकड़ों के राहगीरों को लगने से कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की मुकम्मल बारीकबीनी से हर जाविये से तहकीकात करेगी। आज यहाँ पे साउथ जोन लिमिट में, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में, यहाँ पे शालीगंडा रोड पे एक फायर एक्सीडेंट हुआ। ये फायर एक्सीडेंट अराउंड 9:45 to 10 o'clock के बीच में यहाँ पे हुआ। प्राइमा फेसी जो हमें इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आग लगी थी, फायर एक्सीडेंट हुआ था। एट द सेम टाइम इस शॉप के सामने एक सीएनजी पिटेड कार भी यहाँ पे थी। बिकॉज ऑफ एक बार फायर एक्सीडेंट होने के बाद में शॉप के अंदर उस सीएनजी कार को भी आग लगी और उसकी वजह से सडनली एक ब्लास्ट हुआ। इसमें जो नेबरिंग 3-4 शॉप्स के शटर्स थे तो शटर्स यहाँ से ब्लास्ट हो गए। उस टाइम पे उस दौरान शॉप भी ओपन से, उस कार में भी 1-2-3 लोग थे, उसकी वजह से एक 4 से 5 लोगों को इंजरीज हुई है। ये सारे नॉन फैटल इंजरीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सारे लोग सही सलामत है और सभी लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ये एक्सीडेंट होने के बाद में हमें इंफॉर्मेशन आया और इमीडिएटली पुलिस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे रेस्ट करते हुए सारे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई। इसके अंदर यहाँ पे इमीडिएटली अभी तक टोटल 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुके हैं और सारा का सारा जो फायर कंट्रोल है वो कम्प्लीटली कंट्रोल में है। किसी भी तरह का फायर यहाँ पे नहीं चल रहा है। हमें जरूरत पड़ती है तो हमने और भी एक 3-4 फायर ब्रिगेड यहाँ पे बुलाए और वो भी यहाँ पे आने वाले ताकि किसी तरह का कोई इश्यू ना हो। ये फायर एक्सीडेंट के टाइम पे फायर को कंट्रोल किया गया, साथ में प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हमने जो नेबरिंग प्रीमाइसेस है, नेबरिंग जो कमर्शियल शॉप्स है उसको बंद किया गया।
जो भी यहाँ पे रेसिडेंस है, नेबरिंग जो फैमिलीज यहाँ पे रहती है, सारे लोगों को यहाँ से निकाला गया। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे इस एरिया से बंद किया गया और साथ में इस मेन रोड पे इंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ से जो व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, सारे व्हीकल्स को यहाँ से रिमूव किया गया। तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। तो मैं सारे पब्लिक को, पूरे हैदराबाद शहर को, आवाम को और साथ में सारे हमारे मीडिया दोस्तों के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसी पे आप भरोसा रखिए। किसी भी तरह का अनऑफिशियल फेक न्यूज पे आप मत भरोसा रखिए। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का फाइटर लॉस नहीं है और सारे लोग सही सलामत हमने हॉस्पिटल में भेजे गए और ये फायर एक्सीडेंट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। दमकल वाहनों की कितनी उपस्थिति है? यहाँ पे टोटल अभी तक 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुके हैं और जरूरत पड़ता है तो और भी जो 3-4 फायर ब्रिगेड है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। कोई गंभीर रूप से इंजर्ड हुए? अभी तक जो भी सारे पर्सन है उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, तो अभी तक किसी तरह का ऐसा फाइटल इंजरीज तो किसी को नहीं है जो प्राइमरी बेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्लोज होने के बाद इंसिडेंट हुआ या शॉप ओपन था कंप्लीट टाइप पे हुआ? जो भी हमें प्राइमरी बेस से इंफॉर्मेशन मिला है उससे ये पता चल रहा है उस टाइम पे शॉप्स ओपन थे और टाइमिंग जो था 9:45 to 10 o'clock का था। उस टाइम पे सारे शॉप ओपन थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।